ہوتا ہے نیا تھر، یہ ہوتا ہے نیا پاکستان. دوسرے بات کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گڈ گورننس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری، اس کو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹس. لیکن یہ تھوڑا بہت جو ہمارے مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادتی ہے. یہ تو ان کا کھولا تھا، سب سے پہلے حق تو ان کا تھا بجلی پہ. تھر کے عوام کی جو بجلی بل ہے، اسلام پور کے عوام کی جو بجلی بل ہے، وہ سندھ حکومت پے کرے گی آج سے. اور جب سے یہ شروع ہو جائے گا تھر کے عوام کی بجلی، تھر کے غریب عوام کی بجلی مفت ہوگا. یہ ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ، یہ ہوتا ہے عوام کی خدمت، یہ ہوتا ہے ترقی، اور یہ ہوتا ہے نیا پاکستان. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے. میرے ہر دن چیف منسٹر سندھ مجھے کہیں نہ کہیں لے کر جا رہا ہے کسی نہ کسی منصوبہ کو انوگریٹ کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے منصوبے ہیں، یہ سندھ حکومت کے منصوبے ہیں. ہم کسی اور کے منصوبے پہ جا کر اپنا تختہ نہیں ڈالتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹس پہ میں آپ کے ساتھ نبیلہ سندھو. پینل میں آج شامل ہوں گے فہد حسین صاحب، لطیف چودھری صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، اور ساتھ حاضر رہے گا آج شکیل انجم صاحب کا. بات کریں گے کہ کوئلے کی دولت سے مالا مال سندھ کے علاقے تھر کے غریبوں کو امید کی کرن نظر آنے لگی ہے. حکمرانوں کی جانب سے تھر کے عوام کو بنیادی سہولیات دینے کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے گئے، لیکن آج تک ان کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. 11 سال سے سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج 330 میگا واٹ تھر کول پاور پلانٹ کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے اپنے خاندان کے کارنامے گنوائے، منصوبے کو گڈ گورننس اور بہترین مثال، اور اسے پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کا اہم کارنامہ گنواتے ہوئے کہا کہ مقامی لوگوں کو بجلی کا پہلا حق دیتے ہوئے تھر کے غریب عوام کو پوری زندگی مفت بجلی دینے کا اعلان کرتے ہیں. جیالے قائد نے جہاں سندھ حکومت کی تعریفوں کے پل باندھے، وہاں مخالفین پر بھی طنز کے تیر چلائے اور وفاقی حکومت کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیے. انہوں نے وفاقی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی طرح اعلانات اور باتیں نہیں کرتی، بلکہ عملی طور پر عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے. اسی حوالے سے ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ کیا عمران خان حکومت سابقہ حکومتوں کے منصوبوں کا کریڈٹ لے رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب آپ سے اس کا آغاز کریں گے. دیکھیں، مطلب ہے کہ اگر پچھلی حکومت نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے اور وہ تکمیل جو ہے وہ اس حکومت کے وقت میں آ رہا ہے تو ان کے اوپر تختی لگانا کمپلیٹ ہوا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ بات ایک ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے اس کا بنیاد رکھی اور جن لوگوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ان کا ذکر بیچ میں ہونا چاہیے. اور کئی دفعہ ہوا بھی ہے کہ میں نے ایک آدھ لیڈر کو سنا بھی ہے کہ انہوں نے اس قسم کی جو پروجیکٹس ہیں ان کی یہ وہ تسلیم کیا ہے کہ یہ پچھلی حکومت کے دور میں شروع ہوا تھا اور ابھی وہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے، اور اس میں ان کا بھی کریڈٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ابھی میرے خیال میں 7-8 مہینے ہوئے ہیں اور ان کی جو مالی مشکلات جو کچھ خود ساختہ ہیں اور کچھ جو ہے ان کو ویسے میں ملی ہیں، ابھی تک یہ کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع نہیں کر سکے ہیں. میرے خیال میں جب تک یہ اسٹیبلٹی کے دور سے گزریں گے اس کے بعد یہ کوئی پروجیکٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کی کوئی بنیاد رکھ سکیں گے اور دیکھیں کہ وہ اپنے 5 سال میں مکمل کرتے ہیں. حالانکہ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ منصوبوں کے بارے میں کوئی اچھا نہیں ہے. اگر آپ پختونخوا میں دیکھیں تو ان کا جو بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں تکمیل کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کب پائے تکمیل تک پہنچے گا. انہوں نے کوئی 300 ڈیمز کی بات کی تھی، اس کا بھی جو ہے ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ 300 ڈیم کدھر بنائے تھے انہوں نے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پختونخوا ہے وہ پورے ملک کو بجلی دے گا 5 سال کے اندر، انہوں نے کہا تھا. وہ میرے خیال میں ابھی تک تو پختونخوا کے پاس بجلی پوری نہیں ہے تو وہ کیا بجلی پوری کریں گے. تو یہ جو وہ ہے یہ حکومت جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ کچھ پروجیکٹ جو ہیں جو عوام کے ویلفیئر کے لیے پروجیکٹس ہیں، بلین ٹری بھی جو ہے اس کا بلین ٹری کا کچھ نہ کچھ آثار ہیں، بلین ٹری کے کچھ نہ کچھ آثار ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم جو ہے کوئی 30% جو ہے وہ دے دیں گے، فارسٹ کور وغیرہ دے دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. تو باقی انہوں نے جو یہاں پر اعلانات کیے تھے کہ ہم تجاوزات ختم کر دیں گے، ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو درخت لگائیں گے، ہم صفائی کی مہم ایک چلی تھی، وہ بھی مطلب ہے کہ بڑی کانفرنسز وغیرہ کیا، اس کے اوپر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ آگے ان کا پروگرام کیا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کریں.
ठीक है फहद साहब, साबिका हुकूमत के मंसूबों का क्रेडिट तो ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अपने मंसूबे BRT पर तो अपने नाम की तख्ती लगाना नसीब नहीं हुई। कल जिस तरह से पेशावर में मौसम खराब हुआ तो छतें तक उड़ गई वहां पर। देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है उसमें कुछ हद तक क्लैरिटी जो है वो हमारी हुकूमतों में शायद आनी चाहिए, ख़ास तौर पर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमतें हैं। पहली बात तो देखिए, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया तो बड़ी अच्छी बात है। हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी देखने को मिला जो हुकूमत सिंध ने किया है। हमने परफॉर्मेंस और डिलीवरी के अल्फाज जो हैं वो हुकूमत सिंध से भी सुने, ये ज़रा कम कम सुनने में मिलते हैं। तो इससे कम से कम ये तो जाहिर हो रहा है कि वहाँ भी एक एहसास होता जा रहा है और एक अवेयरनेस आ रही है कि अब अगर आपको वोट चाहिए तो आपको डिलीवर करना होगा। दूसरी तरफ देखिए, जो जहाँ पे जो ये PTI की गवर्नमेंट है उसकी एक जो फेलिंग नज़र आ रही है वो ये है कि वो शायद प्रोजेक्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात तो करती है लेकिन उस पर अमली तौर पर काम करना उनको आ नहीं रहा। अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की BRT प्रोजेक्ट की, वो एक मुंह बोलता सबूत है कि प्रोजेक्ट को कहना कि हम शुरू कर रहे हैं और उसको बाकायदा तौर पर एक कामयाब तरीके से ख़त्म करना वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। 18वीं तरमीम के बाद जो अक्सरियत है इस तरह के प्रोजेक्ट बेस्ड गवर्नेंस की वो सूबों में चली गई है। इसलिए इस्लामाबाद में, ये फेडरल टेरिटरी में, फेडरल गवर्नमेंट में इमरान खान साहब बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड गवर्नेंस जो है वहाँ उसकी कैपेसिटी जो है वो सूबों के पास है। और उस हवाले से अगर PTI ने अपना एक लोहा मनवाना है तो उनको सबसे पहले पंजाब में ये गवर्नेंस करके दिखानी होगी। लेकिन मसला ये हो रहा है नबीला कि इस तरह की प्रोजेक्ट बेस्ड गवर्नेंस अगर आपने शो करनी है तो आपको दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी चाहिए होती हैं। पहली बात, ऊपर से सियासी क्लैरिटी और सियासी विल और सियासी विजन, और उसके नीचे एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो कि उसको डिलीवर करे, जो प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाए। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पंजाब में ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसलिए जो है जो जिस तरह की गवर्नेंस PTI करना चाह रही है उसके आसार नजर नहीं आ रहे। ठीक है आमिर साहब, सियासी विल नजर नहीं आ रही है, शायद यही वजह है कि तनकीद भी आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि हम इस मंसूबे से बिजली मुफ्त कर देंगे। क्या आवाम की जरूरत सिर्फ बिजली ही है? सिर्फ बिजली मुफ्त कर देना ही काफी होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि उस पर शुक्र अदा करें जो मुकम्मल हो जाए। ये ना करें कि जी ये क्यों नहीं किया तो वो साथ क्यों नहीं किया। जैसे मेट्रो बन रही थी तो तालीम, सेहत, सब लोगों के पेट में दर्द हो गया कि जी वो भी ज़रूर करें। भाई जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर तो बात करें, बहुत अच्छा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरल में रही 5 साल, टका नहीं उन्होंने सपोर्ट किया सिंध के इस मंसूबे को। इस मंसूबे को सपोर्ट किया नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने जब यूनुस डागा सेक्रेटरी वाटर एंड पावर थे, जो अब सेक्रेटरी खजाना है। उन्होंने नवाज शरीफ से स्पेशल परमिशन लेके चाइना के लिए सारी सब चीज़ें क्लियर करवाई कि ये सिंध का एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कामयाब हो सकता है। लिहाजा नवाज शरीफ ने इसे बिल्कुल चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ उठा के रखा। बिलावल ठीक क्रेडिट ले रहे हैं, वो हो गया, आज ये हो गया। ये मकामी लोगों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। ये राइट होता है, जैसे जहाँ से गैस निकलती है सुई के मकाम से, तो वो लोग कहते थे कि हमें तो वहाँ के नवाब साहब देते ही नहीं गैस, सारे पाकिस्तान में सारी दुनिया में पहुँच गई। ज़ियाउल हक से भी मुतालबा हुआ तो कोयटा पहुँची थी गैस। अब इस गवर्नमेंट का मखमसा ये है कि एक तरफ तो इनका बयानिया यह है कि कर्जे लूट के खा लिए गए। अब अगर वो ये नीलम जेलम देखें ना, अब 100% प्रोजेक्ट अपनी प्रोडक्शन दे रहा है। ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं बात कर रही कि फिर कहेंगे अच्छा जी पैसे तो यहाँ पे लगे। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे खुल गई, वो इसलिए नहीं बात कर रहे इस बात पे कि फिर ये दूसरी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाएगा। अब आप ऑरेंज ट्रेन टोटल बंद पड़ी है, उसका सुप्रीम कोर्ट 2-3 दफ़ा कह चुकी कि भाई आप हमें टाइमलाइन दें। उसके बाद से खामोशी है। 50 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने लगाने थे जो चाइना से आए हैं, वो कहाँ गए? उसका हिसाब किताब पिछली गवर्नमेंट ले गई, कहाँ ले गई? आप आए 8 महीने हो गए, आपने क्यों नहीं उस पर प्रोजेक्ट पे शहर पे शुरू किया? वो कहाँ गया जो आपके जिम्मे काम था? इसी तरह इनका जो BRT का तो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी तरह बता दिया। एक सवात एक्सप्रेस वे भी है जो स्वाबी से चल रही थी, 5 साल से हम उसका सुन रहे हैं कि उसकी सुरंगें बन रही हैं, उस पर काम हो रहा है। हमारा बड़ा मायानाज इदारा FW उस पर काम कर रहा है। इसी FW ने जहाँ जहाँ पंजाब गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम किए हैं वो बिल्कुल बर वक्त, बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट हुए हैं। हमें उसका बताया जाना चाहिए PTI गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई वो मनसूबा क्या इस गर्मी के मौसम में खुल जाएगी शारा, ताकि लोग अच्छी तरह से चले जाएं। अब वहाँ से आ रही हैं आवाज़ें कि मालम जब्बा का एक छोटा सा रोड है वो नहीं बन रहा, वहाँ से सैदू शरीफ से कंप्लीट करें। भाई आप लोगों को सेहत के नए प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं तो पुरानों को तो ठीक करके चला दें। बिल्कुल
बिल्कुल, पुराने भी ठीक करने होंगे। शकील अंजुम साहब, BRT तो नहीं बन रही, ऑरेंज ट्रेन लाइन मंसूबा ही मुकम्मल करके इसका क्रेडिट ले लें आप? देखें नबीला, बिल्कुल नहीं लगता कि किसी भी मंसूबे का क्रेडिट PTI की हुकूमत ले पाएगी। अब तक के जो हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो भी मंसूबा होता है वो कागजी मंसूबा होता है, उसमें आप ले लें। जब से इन्होंने ऐलानात किए हैं हुकूमत में आने से पहले या हुकूमत में आने के बाद, उसमें चाहे 50 लाख घर बनाने हों, 1 करोड़ नौकरियां देनी हो, मुर्गियां पालनी हो, अंडे देने हो, और रेलू कट्टे, और जिस किस्म के भी मंसूबे आप ले लें, तमाम के तमाम वो कागजी और ऐलानात तक महदूद हैं। उसको हमने एग्जीक्यूट होते नहीं देखा। और अब तक के जो मंसूबे आप देख लें, जो अब मुल्तान अब्दुल हकीम मोटरवे की तकमील हुई है, उस पर भी इन्होंने अपनी तख्ती लगा दी है। इससे पहले शोरकोट फैसलाबाद वो मुकम्मल हुई, उस पर भी अपनी तख्ती लगा दी। इसी तरह मुल्तान से जो है हैदराबाद, वो 348 किलोमीटर मोटरवे तकमील के आखिरी मराइल में है, उस पर भी इनकी तख्ती लगेगी। मुझे जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, जो इनके रुझानात हैं, जो इनकी मुआशी सूरत हाल है, उससे ये नहीं लगता कि हुकूमत कोई बड़ा मंसूबा पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम को दे पाएगी। सिर्फ यही है कि पुराने जो मंसूबे हैं जो साबिक हुकूमत के हैं, उन्हीं को चलाया जा रहा है, और उनमें भी किसी किस्म की रिवायात का ख्याल नहीं रखा जा रहा। होना तो ये चाहिए था, अगर आज कल इन्होंने 30 मार्च को जो मुल्तान से लाहौर मोटरवे का इफ्तिताह किया है, तो वहाँ पर साबिक हुकूमत के किसी नुमाइंदे को बुलाना चाहिए था। जिस तरीके से मुल्तान एयरपोर्ट का जब इफ्तिताह किया मियाँ नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म, तो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी उस तकरीब में बुलाया और उन्हें स्टेज पर बिठाया। ये होती हैं रिवायात, सियासी रिवायात। और वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने सारी उम्र अपनी बरतानिया में गुजारी है, उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं, और उन्होंने वहीं से कमाकर बनी गाला में ज़मीन भी खरीदी, अपना बंगला भी बनाया, लेकिन उस मुल्क की जो रिवायात हैं वो अपने साथ नहीं लेकर आए। हालांकि बरतानिया का जो आइन है वो रिवायात पर मबनी है, उसमें कोई अभी तक तहरीरी आइन बरतानिया के नहीं है। और अब से पहले 1937 से पहले बरतानिया का जो वज़ीर आज़म का ओहदा था वो भी रिवायात के तौर पर सामने आता था। 1937 में उसको आईनी शक्ल दी गई, तो वज़ीर आज़म वहाँ से कुछ रिवायात ले आते, तो हम ये समझते कि पाकिस्तान में कुछ रिवायात, सियासी रिवायात आ गई हैं। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे के मंसूबों का जो है वो क्रेडिट लेती रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर साबका दौरे हुकूमत के मंसूबों का क्रेडिट ले रही है, तो इसमें बुराई क्या है? नबीला, अब कोई बुराई नहीं। ज़ाहिर है कोई मंसूबा जब शुरू होता है तो वो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होता है। मेगा प्रोजेक्ट्स बरसों के मंसूबे होते हैं। बाज़ औक़ात कोई गवर्नमेंट होती है वो 1 साल पहले शुरू करती है, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसको कंप्लीट करती है। तो काबिल एतराज़ बात उस वक्त सामने आती है जब मुतहारफ फ़रीक एक दूसरे पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं कि ये नाहल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं। तो जब वो फिर उनके किए हुए कामों का क्रेडिट लेने के लिए कोशिश करते हैं या लेते हैं, तो फिर एक काबिल एतराज़ बात सामने आती है। PTI के साथ भी यही कुछ हो रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी लड़ाई से सबक सीखा और उन्होंने किसी हद तक कोशिश की कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। तो उस हवाले से ये जो कल्चर आज हमें नज़र आया सिंध हुकूमत का भी, कि एक प्रेशर, अवामी दबाव उन पे आया और उन्होंने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की। तो थरकोल प्रोजेक्ट जो है, मेरा ख्याल है कि कुछ इस मामले में उनका क्रेडिट बनता है और उन्होंने जो ड्यू क्रेडिट उनका है वो देना चाहिए। और एक इससे सिंध हुकूमत के वसाइल में भी इजाफा होगा, क्योंकि जो कोल का उनको रॉयल्टी है वो भी उन्हें मिलनी है, टैरिफ भी उनको मिलेगा, बिजली तो नेशनल ग्रिड में जाएगी और वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और सूबों को इससे आगे सीखना चाहिए। पंजाब साहिवाल कोल प्रोजेक्ट भी था, पंजाब ने अपनी शहबाज शरीफ के साथ कोशिश की कि अपने वसाइल को किया जाए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा भी करना चाहिए, बलूचिस्तान को भी करना चाहिए। तो ये गवर्नेंस का जो मुकाबला है ये तो एक सेहतमंद अलामत है। तो यही हम PTI को भी समझाते आए हैं कि आप ये चोर उचक्के डाकू वाला खेल छोड़ें और डिलीवर करने की कोशिश करें। बेशक आने वाली गवर्नमेंट ले ले क्रेडिट, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, उसको देना चाहिए। बिल्कुल, क्रेडिट जिसके भी खाते में जाए, ज्यादा बड़ा क्रेडिट ये है कि अवाम को उससे रिलीफ कितना मिल रहा है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, ब्रेक लेंगे और बात करेंगे कि जमानतों पर रिहा सियासी कायदीन का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है। एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए साथ रहिएगा।
30 जून से पहले मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चोर सारे अंदर होंगे। जो कंपनियां आसिफ जरदारी को बाहर से पैसे भेजती थी, उन्हीं कंपनियों ने नवाज शरीफ साहब को पैसे भेजे हैं। बेसिक इनका बैंक जो है पाकिस्तान से बाहर है, ये सारे अंदर से। नथु सिंह एंड फतू सिंह सेम। जरदारी बड़े दिल का आदमी है, वो पैसे दे सकते। ये मर जाएंगे नवाज शरीफ के, ये कफन के साथ जेबें लगी होंगी। ये ग्रैंडले बैंक है, ये स्विस बैंक का अकाउंट है, ये लंदन का अकाउंट है। ये सारे लोग कहते हैं कैबिनेट में कि पैसे दे रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को मैंने कहा ये मर जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान एक दीनी ताकत है, ये कह रहे हैं जनाब कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, ये बिल आखिर ईद के बाद इकट्ठे होंगे। इमरान खान कहता है कि मैं किसी कीमत पर इनको NRO नहीं दूंगा, वो ठीक कहता है। लेकिन बाज ऐसे लोग भी है जो कहते हैं दफा करो, माफ करो, मिट्टी पहन दो। हुकूमती ख्वाहिशात के बरक्स नैबज़दा अपोजिशन जमातों को अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। और अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो लीगी कायद नवाज शरीफ अल अजीज़िया केस में आजकल तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर हैं, लेकिन लीगी सदर शहबाज शरीफ भी जमानत मिलने पर बैरून मुल्क रवाना हो चुके। जबकि पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स साफ पानी स्कैंडल में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर चुके। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह और मुराद अली शाह समेत कई सीनियर रहनुमा जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कराने में कामयाब हो चुके। इन सारी बातों के पेश नज़र शेख रशीद साहब की बात की जाए तो पेश गोइयों के माहिर शेख रशीद ने तमाम करप्ट हुक्मरानों की गिरफ्तारी के लिए 30 जून की नई तारीख दे दी है। एक्सपर्ट के सामने सवाल रखेंगे और आमिर साहब आपसे इसका आगाज करेंगे। सवाल ये है कि जमानतों पर रिहा सियासी कायदीन का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है? देखिए, सियासतदानों का मुस्तकबिल उनके अपने रवैये पे है। और फिर जब हम बात करते हैं कि ज़मानतों का इशू है तो जाहिर है अदालत के साथ उन्हें बिहेव करना होगा। और जब तक ज़मानतें, जैसे मियां नवाज शरीफ की बिल्कुल एक मशरूत ज़मानत है और 1 महीने की शायद रह गई है, और एक ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके केस में मौजूद है, वो बिल्कुल ठीक ज़मानत है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कंफर्म कर दिया था, उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ज़मानत पे हैं, हमज़ा ज़मानत पे हैं, आसिफ जरदारी, उनकी फैमिली वो पूरी तरह इस वक्त शिकंजे में है कि वो GIT से बचते हैं या नहीं बचते। कहीं पे एक आती है कि जी एक अहम किरदार जो अप्रूवर था वो नहीं बन रहा। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो शेख रशीद साहब बातें कर रहे हैं उसमें यह है कि इमरान खान NRO नहीं देंगे, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। जो लोग NRO जिनके नाम पे कहा जा रहा है कि वो मांग रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि आप हमें नाम बताएं कि आपसे NRO कौन मांग रहा है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मैंने NRO मांगते देखा है और सुना है। शहबाज शरीफ बिल्कुल खामोश है। शहबाज शरीफ के ऊपर हर बंदे को है कि वो जहाँ चाहते हैं डिस्कशन करते हैं। वो बिल्कुल तेज़ बयानिए पे अपने बड़े भाई के साथ पहले दिन से नहीं चले, लेकिन वो अपने बड़े भाई को भी छोड़ते नहीं हैं। उनकी पता है कि जो सियासत है सारी वो बड़े भाई के नाम पर ही है। वो खुद एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो अभी सियासतदान के तौर पे अकेले बने नहीं। वो इसलिए नहीं बने कि वो जब बार बार ढील के लिए नाम आता है तो शहबाज शरीफ का आ जाता है कि बड़े भाई से भी वही बात कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी वही बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे जो हालात हैं उसमें अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये इतना रोशन है। लेकिन सियासतदान गेम करना जानता है। सियासतदान वही होता है जो अपना अच्छा बुरा भला देखता है। अब जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि PTI के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी लोग बात कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? शेख साहब तो जाहिर है ओपन है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि ये जो एहतसाब हो रहा है ये चलता रहे और इसकी तलवार पूरी तरह मुखालफिन के सर पर सवार रहे। लेकिन बात यह है कि ये फैसले फिर अदलिया को ही करने हैं ना। वही बात आ जाती है कि जब आप इस तरह के बयानात देते हैं तो फिर आप एहतसाब के अमल को भी मशकूक बना देते हैं। ठीक है। पहले वो मार्च की डेट दे रहे थे, अब उन्होंने जून की दे दी और उसकी वजाहतें भी दे दी कि शायद इंडिया ने चूंकि एस्केलेशन बढ़ा दी थी और डी एस्केलेशन की वजह से ये सारा काम रुक गया। लेकिन हमने तो नहीं देखा। वह यहाँ तो नया नोटिस दे रहा है, कोई काम रुका तो नहीं। जो एहतसाब की बात चल रही है वो मुकम्मल तौर पे तेज़ी से भी चल रही है। जहाँ तक सियासतदानों का है, वो फजलुर रहमान चाहे वो अब आज जरदारी साहब से आज रात को मिल रहे हैं, कल वो नवाज शरीफ से मिले थे। जाहिर है ये उनका भी राइट है। गवर्नमेंट अपने बयान देने में राइट पे है तो हिज़्ब इख्तिलाफ इकट्ठे होने पे राइट पे है। और जब मुनासिब मौका मिलेगा, हमने कल भी ये बात की थी, वो ज़रूर मैदान में आएंगे। बिल्कुल वो जरूर मैदान में आएंगे। लतीफ़ चौधरी साहब, सियासतदान गेम करना जानता है तो क्या वो फैसलों पर भी असरअंदाज होना जानता है? नबीला, इसमें देखें बात यह है कि बज़ाहिर कुछ चीज़ें जो हमारे सामने नज़र आ रही होती हैं, एक ड्यू प्रोसेस है कोर्ट्स का। अगर ज़ाहिर अब जो मुकदमा दायर हो गया तो उसने तो एक प्रोसेस के ज़रिए ही ख़त्म होना है।
चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जैसे आम अगर किसी के दो फरीक के दरमियान मुकदमेबाजी है तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं और फिर अंदर जाके उनके हक में फैसला हो जाता है। जो पॉलिटिक्स के मामलात होते हैं, जब पावर पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो पावर पॉलिटिक्स के बिहाइंड द सीन भी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं। जो स्टेक होल्डर हैं इस पावर स्ट्रक्चर के पाकिस्तान के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उन स्टेक होल्डर्स के दरमियान कहीं ना कहीं कोई ना कोई रवाबत ना हो रहे हों। तो लिहाजा ये रवाबत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। यकीनन कोई मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग होंगे हमदर्द, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग होंगे, कुछ पीटीआई के होंगे जो इस सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि मुल्क भी तो एक हमारे सामने है ना, एक जानब तो एक आईनी प्रोसेस और कानूनी प्रोसेस चल रहा है, पिछली जानब कुछ ना कुछ और मामलात भी हो रहे होंगे। तो ये जो मुकदमात होते हैं पॉलिटिशियंस के मुकदमात, ये वो फिल्मों की जादू नगरी होती है कि एक सीन चलता है, आपको नज़र आता है कि आज नायब फलां के केस खोल रही है, रोज़ पेशियाँ हो रही हैं, फिर अचानक जमानतों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर ये फैसले ख़त्म हो जाते हैं। माजी हमारे सामने है, तो मेरा ख्याल है आइंदा भी कुछ ऐसी किस्म की सरगर्मियाँ हो रही हैं। ठीक है फहद साहब, फिर पेशगोइयों को कितना सीरियस लेना चाहिए? 30 जून की तारीख वाकई इतनी अहमियत की हामिल होगी? देखिए, पेशन गोई तो कोई जो भी चाहे वो कर सकता है और अक्सर व बेशतर वो गलत होती हैं, क्योंकि या तो किसी के पास इल्म गैब है या उसके पास पहले से उन तमाम फैसलों की इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हुए भी नहीं है, तो उसको तो मेरे ख्याल है आप साइड पे रखते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडरान का और उनके ऊपर जो एक कानूनी सिलसिला जो है जिसमें वो जकड़े हुए हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा हम उसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो केस है वो एक मुख्तलिफ स्टेज पर है। मियाँ नवाज शरीफ जिस केस में उनको जेल हुई है, सज़ा हुई है, वो एक अलग लेवल पर है, एक अलग जिसे कहते हैं कि स्टेज पर है। और मियाँ शहबाज शरीफ जिन केसेस को भुगत रहे हैं उनका एक अलग जो है वो फेज़ है। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ के अगर हम कोई तज्ज़िया करें तो शायद वो थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा। जो वाहिद चीज़ जो मैं इसमें एक कॉमन चीज़ ढूंढ सकता हूँ वो ये है कि देखिए, ये तीनों लोग जो हैं, तीनों अहम लीडर्स हैं अपोजिशन के, इनकी जो सियासत है उसमें बहुत हद तक अब मुश्किलात इसलिए पैदा होंगी क्योंकि वो एक ऐसे लीगल प्रोसेस के अंदर घुस गए हैं जिसमें कोर्ट कचहरियों की पेशियां हैं और जिसमें किसी वक्त भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नैब का कानून जो है वो नैब चेयरमैन को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी स्टेज पे किसी की भी गिरफ्तारी जो है उसको ऑथराइज कर सकता है। तो इन तीनों लीडर्स के ऊपर, चाहे वो जमानत पर हों चाहे वो किसी और स्टेज पर हों, उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी। और इस तरह की तलवार जब किसी के सर पे लटकी रहे तो जाहिर सी बात है कि उसको पहले अपने तमाम तर मुश्किलात का सामना करना है और फिर सियासत का सोचना है, फिर हिकमत अमली का सोचना है और फिर कोई सियासी जो है वो अपोजिशन का सोचना है। इसलिए मेरा ख्याल है ये इसमें जकड़े रहेंगे और हुकूमत के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा जितना कि अपोजिशन चाहती है कि वो उनके ऊपर रखे। ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत ने तो प्रेशर डेवलप करने के लिए आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना को टास्क भी दे दिया है कि जिन जिन के ऊपर केसेस चल रहे हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। ये कितना मुश्किल हो सकता है अपोजिशन जमातों के लिए? देखें, ये शेख साहब जो है, अगर वो अपनी जो महकमा है रेलवे उसके ऊपर अगर वो ज़्यादा तवज्जो दें और ये जो इस किस्म की जो बातें हैं जो अपने हुकूमत के लिए मुश्किलात वो पैदा कर रहे हैं, इससे अगर गुरेज करें तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में अभी तक जो अप कंट्री ट्रेन्स हैं और कराची के दरमियान जो वो है, अभी तक वो ट्रेन्स जो है वो टाइम से नहीं पहुंच रही हैं। अभी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत मुश्किलात में हैं और वो ये चाहेंगे कि पहले जो ये मौजूदा मुश्किलात हैं जिसमें वो जेल किसी वक्त भी उनको जो है ज़ेर हिरासत ले जा सकता है, उसमें से अपने आप को निकालें और एक गैप क्रिएट करें उनके जेल जाने में और सियासत में। तो ये उनका इस वक्त एम है। फजल रहमान साहब का एम है कि वो फौरन जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक एजिटेशन शुरू की जाए। अभी जो हुकूमत में ये जो एनआरओ की बातचीत हो रही है या वो जो यहाँ पर उनको थोड़े सा डर है वो ये है कि अपोजिशन बहुत तगड़ी है, वो बहुत, अगर पंजाब में देखें तो वहाँ पर भी बड़े रेजर थिन उनके पास मेजॉरिटी है। इस तरह जो फेडरल गवर्नमेंट में है उसमें 2-3 जो है वो लोग कुछ नाराज हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो ये जो है इनकी कैपेसिटी तो है, इंटेंशन अभी नहीं है, लेकिन इंटेंशन तो ओवरनाइट चेंज हो सकती है। तो ये हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत है या उसके जो इत्तेहादी है वो ये देख रहे हैं कि इनके पास कैपेसिटी है
इनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, इनकी हुकूमत को गिराने में वो कुछ हो सकता है, तो वो उससे डर रहे हैं, जिसकी वजह से शोर मचा रहे हैं कि हम छोड़ेंगे इनको नहीं, अमन और नहीं देंगे, वो बाकी नहीं देंगे। तो अभी जब ये अपनी मुश्किलात से निकलेंगे तो फिर इस हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होंगे। ठीक है शकील अंजुम साहब, आने वाले दिनों में लग रहा है कि कोई इम्कान ऐसा नजर आ रहा हो कि इनके ऊपर से ये जो इनको तौसीह मिलने की बातें की जा रही हैं जमानत में, वो खत्म भी हो सकती हैं, इनको सजाएं भी हो सकती हैं? देखिए नबीला, जहाँ तक ताल्लुक है केसेस का और नैब केसेस का ख़ास तौर पर, तो दोनों जो जमातें हैं जिसमें पीटीआई भी शामिल है, उनके लोगों पर भी नैब केसेस मौजूद हैं, और जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उन पर भी मौजूद हैं। लेकिन इसका जो फैसला होगा वो होगा पीटीआई की डिलीवरेंस पर, कि वो किस हद तक अवाम को डिलीवर कर सकती है। अगर तो यही हाल रहा जो 9 माह में आपने देखा है कि मुआशियात जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, और उनके जो वुज़रा हैं वो आपस की लड़ाइयाँ उनकी शुरू हैं, और हुकूमत नाम की कोई चीज़ आपको मुल्क के अंदर दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, और जो बातें होती हैं उनके बारे में यही कहा जाता है हर बंदा उससे लाइल्मी का इजहार करता है। अगर तो यही सूरत हाल रही तो फिर मैं ये समझता हूँ ये जो अपोजिशन के लोग हैं इनको ज़मानतें भी मिलेंगी, इनके केसेस भी ख़त्म होंगे, इनकी तोसी भी होगी, और इनका रोशन मुस्तकबिल हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो हुकूमत जिसको लाया गया है, जिसके लिए ये सारा राह हमवार की गई थी, वो हुकूमत अवाम को कम अज़ कम किसी भी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आप कोई शोबा उठा के देख लें, वो सेहत हो, तालीम हो, पानी, साफ पीने का पानी हो, कोई भी शोबा आप जिंदगी का उठा के देख लें, किसी शोबे में बेहतरी की बजाय अबतरी की सूरत हाल आपको दिखाई देगी। और रहा जहां तक ताल्लुक है आपने जो सवाल शुरू किया शेख रशीद साहब का, तो वो ये इस किस्म की फुलझड़ियां छोड़ते रहते हैं। उनकी सियासत जो है वो इन्हीं बयानात के इर्द गिर्द घूमती है। वो ये समझते हैं कि वो इस किस्म के बयानात देंगे तो उनकी सियासत आगे चलेगी, अदरवाइज। लेकिन अब बात बयानात से आगे निकल चुकी है, अब आपको अमल दरामद करना होगा और आवाम को डिलीवर करना होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सवाल करेंगे कि अद्वियात की कीमतों में कमी का टास्क उस्मान बुज़दार उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे। ब्रेक एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर के दौरे के मौके पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया और कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 72 घंटों में अद्वियात की कीमतें पुरानी सतह पर लाने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि अद्वियात की कीमतों में कमी का टास्क उस्मान बुज़दार उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पाहा साहब आपसे इसका आगाज करेंगे, क्या उस्मान बुज़दार अब की बार उम्मीदें पूरी करेंगे? देखिए नबीला, जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है मेरा ख्याल है ये एहसास होता जा रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब के 3 बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं, दूसरा ये कि वो एक अच्छे आदमी हैं, और तीसरा ये कि वो इमरान खान की बड़ी गलती है। जब तक इस गलती का अजाला नहीं होगा पंजाब में यही मसाइल चलते रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि जो कुछ इमरान खान साहब बुज़दार साहब से करवाना चाह रहे थे वो हो नहीं रहा, और टाइम उनके पास है नहीं, क्योंकि अगर तब्दीली पंजाब में नज़र नहीं आई तो फिर समझिए कि वो नहीं आई। इसलिए मुझे लगता यह है कि जितनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर को एहसास होगा कि अगर उन्होंने पंजाब को उस तरीके से चलाना है जैसा कि वो चाहते हैं, तो उन्हें शायद इस गलती का अजाला करना पड़ेगा। ठीक है शकील अंजुम साहब, इस गलती का अजाला क्या होगा? इस गलती का अजाला तो हम भुगत रहे हैं और हम भुगतते रहेंगे जब तक वो वज़ीर आला पंजाब हैं। क्योंकि आप ये देखें कि जो जो तवक्कुआत उनसे लगाई गई थी उनमें वो पूरा नहीं उतरे, और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। ख़ास तौर पर जो भी टास्क उन्हें दिया जाता है उसको वो पूरा कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इत्तफाक से वो मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो भी रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, सादा आदमी हैं, लेकिन इस किस्म की तबीयत वजारत आला पंजाब के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर एक बिल्कुल तेज आदमी चाहिए
جس کو تمام معاملات کا پتہ ہونا چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے. اتفاق سے عثمان بزدار صاحب کو اس قسم کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ جو انہیں ٹیم ملی ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور اس وقت جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ مختلف لوگ ہیں جو یہ بیہیو کرتے ہیں کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں, گورنر اپنے طور پر کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو علیم خان اب تو نیب کی حراست میں ہیں, اس سے پہلے وہ بھی یہی بیہیو کرتے تھے, اور انہیں اس طریقے سے پنجاب میں چلنے نہیں دیا جا رہا اور کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آپس کے اختلافات اور پھر جو بیوروکریسی ہے وہ پنجاب میں خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں عامر الیاس رانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہی نوٹس دینا پڑتا ہے. عثمان بزدار کسی بھی معاملے پر خود آ کر سامنے کیوں نہیں آتے ہیں, خود کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہیں, ہمیشہ نوٹس دینے کے بعد ہی ٹاسک کیوں ملتا ہے ان کو؟ میرا سوال پہلے یہ ہے کہ وہ جو اعلان کیا تھا کہ گیس میں ہم نے زیادہ پیسے لیے لوگوں سے اربوں روپے, وہ کیا ہمیں واپس مل گئے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ اس کا ایک ایفیکٹ ہی تو میں خود آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. آپ نے میری ٹویٹ تو نہیں پڑھ لی کہیں عامر صاحب؟ اب میرے ٹائم میں مجھے بات کر لینے دیں, ہم سارے ہی ایفیکٹ ہی ہیں, سارا ٹائم پورا ملے گا. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ کیا وہ پیسے واپس آگے وعدے ہو گئے پورے. پھر اگلی بات ہے کہ کیا یہ جو الٹیمیٹم دیا ہے یہ دوائیوں کی قیمتیں عثمان بزدار نے بڑھائی تھی, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی تھی, جس کا کہانی قصہ ڈال دیا پیچھے کہ جناب یہ تو پچھلی گورنمنٹ کر گئی تھی, آپ عمل نہ کرتے. اب جب اربوں روپے لوگوں نے بنا لیے, آپ دوائی کی قیمت یہ دیکھیں کہ پیراسیٹامول کی ایک ڈبی اگر 60 روپے 60 پیسے کی ہے, گیم یہ ہوتی ہے کہ 60 روپے 90 پیسے کر دیے. ہم پہلے بھی 61 روپے دے رہے تھے, ہم بعد میں بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ چونا لگاتے ہیں اربوں روپے کا صرف ایک ایک پیسے میں. ادویات کی گیم یہ ہوتی ہے, لیکن یہاں تو یہ ہوا کہ 50 روپے والی ڈبی 350 میں مل رہی ہے, 100 والی 400 میں مل رہی ہے, اور کہا کہ ہم نے 20% اور 15% بڑھائی. اس سب پہ صوبوں نے اختیار دیا تھا مرکز کو, جو ڈریب بنائی تھی, اور 18ویں ترمیم کے بعد اختیار دیا تھا. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا کام 2 دن چھاپوں کے بعد صوبوں پہ ڈال دیا. یہ غلط بات ہے. یہ پہلے دن سے کام تھا کہ آپ نے دوائیاں اتنی بڑھائی کیوں ریٹس, اور اب آپ چھاپے مار رہے ہیں, کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے فیڈرل گورنمنٹ اپنا جواب دے, صوبوں سے تو کام لے, پھر یہ کے پی میں کیوں نہیں آپ دے رہے ٹارگٹ؟ آپ کی اتحادی بیٹھی ہے بلوچستان میں, ان کو بھی دیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو ریکویسٹ کریں کہ اگر ایسا کام ہو سکتا ہے تو ان سے بھی بات کریں, صرف پنجاب میں کیوں؟ بالکل. لطیف چودھری صاحب, پنجاب حکومت کہاں تھی جب یہ ادویات کی قیمتیں اتنی بڑھ رہی تھیں؟ اب کیوں خیال آ رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ نبیلہ یہ سارا کا سارا پنجاب حکومت سے مراد میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب قصوروار ہے. یہ یہاں کے وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب ہی ہیں, ملک کے وزیر اعظم بھی وہی ہیں, پنجاب کے بھی وزیر اعلیٰ وہ ہیں, اور کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی وہی ہیں, کیونکہ وہ ہر مہینے آتے ہیں, کیبنٹ کی اجلاس میں آتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, سارا کچھ وہی کرتے ہیں. تو ادویات کی جو قیمتیں ہیں میڈیسن کی, یہ بھی انہوں نے ہی بڑھائی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے. ان کے جو بکرات وزیر اعلیٰ وزیر خزانہ ہیں وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں بڑھانی, کیونکہ یہ ان کی مجبوری تھی. تو یہ چھاپوں سے کبھی قیمتیں کم نہیں ہوتی. اگر ایک چھوٹا سا اقدام کر لیں کہ آپ سرکاری ہاسپٹلز میں ادویات سستے کر دیں, ٹیکس فری کر دیں, تو تب بھی لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. وہاں تو ٹیسٹ کی قیمتیں زیادہ بڑھا دی ہیں. نوٹس دینے کے بعد بھی بریگیڈیئر صاحب امید تو کوئی نظر نہیں آ رہی, عوام تو لٹ گئی. نہیں, میرے خیال میں یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ آپ نے اگر یاد ہو تو افتخار چودھری صاحب نے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, پھر آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا تھا کیا ہو گیا تھا. یہ بزدار صاحب کو کیوں ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں؟ فیکٹریاں تو ساری کراچی میں ہیں, تو ان کے اوپر جا کے کوئی پریشر ڈالے کہ وہاں پر وہ قیمتیں کریں. پنجاب میں تو بہت کم ڈرگ فیکٹریز ہیں, زیادہ تر تو وہ کراچی میں موجود ہیں. اور جیسے ابھی ذکر ہوا, کون سے ہمارے پہلے جو یہ برہم ہوئے تھے, 2-3 باتوں میں برہم ہوئے تھے, تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوا ہے کہ جب یہ برہم ہوتے ہیں؟ یہ بھی چند دن آپ ہم ایسے اوپر بحث کریں گے اور بات ختم ہو جائے گی. یہ بزدار صاحب کی بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن صورتحال جو بھی ہو, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے. آج کے ایکسپرٹ سے ہی دیجیے اجازت, آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار اعلانی کے بعد.